Good morning, students. Myself Manoj and welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Today we are going to start the 11th class syllabus. So, let me briefly introduce the syllabus of 11th class, which is given according to CBSE. There are 10 units in the syllabus of 11th class. And according to NCERT, there are 15 chapters. First unit we are going to start, whose name is Physical World and Measurement. Physical World and Measurement. This is the name of the unit. Okay, first unit we are going to start. First unit of 11th class consists of two chapters, first chapter and second chapter, according to NCERT. NCERT we have to follow. NCERT textbook we have to follow. Okay, children. So, chapter number 1, Physical World, and chapter number 2, Units and Measurement. These two chapters combine to form the first unit. So first we will start with the chapter number 1, which is Physical World. So let us start. Physical World. Students, साइंस, अभी 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे. अब आपने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट किया, कुछ ने नॉन मेडिकल किया होगा, कुछ ने मेडिकल सिलेक्ट किया होगा. नॉन मेडिकल वाले मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है, मेडिकल वालों ने बायोलॉजी ऑप्ट किया है. Physics, chemistry are the common subjects which non-medical as well as medical students have to study. Okay. So science subject itself is very vast. Science subject itself is very vast. So is divided into 3 branches: physics, chemistry, and biology. Physics, chemistry and biology. So we are studying which branch? Physics. It is the most interesting, the most beautiful part of the science. Why? Slowly and slowly you will see how much beautiful physics is. That's why I have given the name to my YouTube channel, The Beauty of Physics. चैनल के साथ बने रहिएगा, बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा how much beautiful physics is. But consistency is required. Physics. Branch of science in which we deal with nature and natural phenomena. जो कुछ भी नेचुरल फिनोमिना हमारे चारों तरफ हो रहा है, उसकी स्टडी फिजिक्स ब्रांच में की जाती है. इसलिए मैं कहता हूं दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द साइंस. तारे क्यों टिमटिमाते हैं? Why does Earth revolve around the sun? How do you listen to me when I make the videos? Everywhere there is physics. Every rainbow, volcano, cyclones, everywhere there is a physics. So in physics branch, we study nature and natural phenomena. Physics itself is a very vast subject. बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फिजिक्स. स्कोप ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स को मैं अप्लाई कर सकता हूं स्टार्स पे, गैलेक्सीज पे, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स पे, वेरी हेवनली ऑब्जेक्ट्स. और फिजिक्स को हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू द मूवमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक विच इज इन लार्ज डोमेन, माइक्रोस्कोपिक विच इज इन वेरी स्मॉल डोमेन. फिजिक्स को आप बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई करते हैं और बहुत स्मॉल. स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट. स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट. Today's basic topic which I am going to discuss in this video lecture is the fundamental forces in the nature.
फंडामेंटल फोर्सेस। हमारे चारों तरफ कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं? देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, बहुत आसान है, बट पार्ट ऑफ सिलेबस वी हैव टू डिस्कस। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, क्या कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इस दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें मास है, दे अट्रैक्ट ईच अदर with a force that is known as gravitational force. Every object in this universe attract each other with a force which is known as gravitational force. अब आप कहेंगे ये क्या बात बता रहे हो? There are 2 students who are sitting in a class. Will they attract each other? क्या attract करेंगे दूसरे को? Not at all. This is not experienced because yes, force is exerted, but that is very negligible force. That is very negligible force. ये मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूं, अगर इसको मैं छोड़ देता हूं यहां से, तो ये क्या होगा? एकदम डाउनवर्ड जाएगा। क्यों गया है डाउनवर्ड? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हुआ इस पर, ऑन दिस मार्कर, ड्यू टू अर्थ। वो हम पढ़ेंगे। इस जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, दैट इज स्पेशल केस नोन एज ग्रेविटी, दैट वी विल स्टडी इन 6th यूनिट। तो दिस marker, because of its mass, it has mass, experience a force due to earth is very heavenly object, that is gravitational force। और बताया आपको भी, क्योंकि अगर एक अर्थ हो जाए तो उसका स्पेशल नाम हो जाता है ग्रेविटी। क्या नाम हो जाता है? ग्रेविटी। तो क्लियर? तो अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीकेस्ट फोर्स है। अगर मैं इसमें भी कुछ मास है, इसमें भी कुछ मास है, अगर मैं इनको यहाँ पर रख दूं, will they attract? Not at all. Although it has some mass, but they will not, because its mass is very small, its mass is also very small, negligible force will be exerted, approximately 0, yes, 0. Clear? So gravitational force is the weakest force in the nature and is experienced when one of the object is very massive. कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो मैसिव होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन कर लेते हैं, 9th क्लास में भी किया था, बहुत आसान, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। We have a spherical object having mass m1. We have another object having mass m2, separated by a distance small r. Now it is found that they will exert force now. अगर मास बहुत कम है तो negligible force will be exerted by objects on each other. The force will be directly proportional to product of masses. Masses की product के directly proportional होगा। एक भी बहुत ज्यादा हो गया तो force बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे इसमें और अर्थ में अगर हम force कैलकुलेट करते हैं, अर्थ इज वेरी मैसिव, तो ये force ला जा रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब किसी बच्चे के ब्रेन में आ सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यों नहीं लिखा? दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन। इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस आती है। आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स को पास लाओगे, डिस्टेंस विल बी डिक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स विल बी इंक्रीज, बिकॉज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल। 9th क्लास में हमने सीखा था कंबाइनिंग 1 and 2। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी बताते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स नेम इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू सेम है, और कितनी है? 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। वैल्यू याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीबीएसई में ऑल कांस्टेंट्स आर गिवन। यूनिट कैसे है? ये लिख लेते हैं,
मुझे जी की यूनिट चाहिए, जी की यूनिट, जी का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए यहां से। कैसे करते हैं, आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा यस डिवाइड। जी की यूनिट चाहिए, फोर्स यूनिट क्या है न्यूटन, आर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर, मीटर स्क्वायर, m1 m2 मास इज किलोग्राम इनटू किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द जी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब यही दो ऑब्जेक्ट्स ये वैक्यूम में रखे थे, अब इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को मैं किसी मीडियम में रख देता हूं, किसी और मीडियम में, सपोज इनसाइड द वाटर एट सेम डिस्टेंस, इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को मतलब m1 m2 आर सेम और सेम डिस्टेंस पर r इज द सेम, तो फोर्स की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं ये देखना चाहता हूं। m1 इज सेम, m2 सेम, r को आपको सेम रखना है, एंड g अभी आपको बताया था चाहे वाटर में चले जाइए चाहे किसी और फ्लूइड में चले जाइए इज सेम, इट मींस ऑल पैरामीटर्स इज सेम, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम। तो f विल बी सेम, इट मींस इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सेम होगा थ्रू एनी मीडियम, इन एनी मीडियम फोर्स वुड बी सेम, इट मींस कंक्लूजन क्या निकलेगा यहां से, लिख लीजिए दिमाग में, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट। अभी हमने डिस्कस किया था अट्रैक्टिव फोर्स होता है, m2 m1 को इधर खींचेगा और m1 m2 को इस तरफ खींचेगा, तो इसको बोलते हैं जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट्स, ये लाइन इनके सेंटर से ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग जो फोर्स करता है उसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहा हूं, 5-6 तो मैं पहले बता ही चुका हूं, आपको टिप्स हो जाएगी, ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक पॉइंट को, बहुत आसान है बता रहा हूँ, फिजिक्स धीरे धीरे बने रहेंगे चैनल पे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी फिजिक्स, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा अगेन हाउ मच ब्यूटीफुल फिजिक्स इज। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, प्रॉपर्टीज। यस फर्स्ट, हाँ जी, क्या होती है नेचर, अट्रैक्टिव, कंसेंट्रेशन चाहिए, साथ साथ लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिक्स में। अट्रैक्टिव क्या बताया था, वीकेस्ट, अभी बताया है सेंट्रल, यहां पे एक आप लर्न कर लीजिए, इन द फोर्थ यूनिट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। आपने देखा था एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आया था, और जब भी आर स्क्वायर की डिपेंडेंस हो, फोर्स आर की स्क्वायर पावर पे डिपेंड कर रहा था, उसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लो। तो ओबीज इनवर्स स्क्वायर लो, ओबीज इनवर्स स्क्वायर लो। लास्ट वन मोस्ट इंपोर्टेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट। और भी हो सकती है बट मेन ये 6 प्रॉपर्टीज है। ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। Second force is again fundamental force, very important, electromagnetic। ये कौन सा है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। हमने पढ़ा है चार्ज पार्टिकल्स, इफ टू बॉडीज हैव चार्जेस दे मे अट्रैक्ट और रिपेल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर दोनों के ऊपर लाइक चार्ज है दे विल रिपेल, अनलाइक चार्ज है दे विल अट्रैक्ट। तो फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स।
force between charged particles. अब एक स्पेशल केस आता है जो हम 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं, when charged particles are at rest. तो this force is named as electrostatic force. This force is named as electrostatic force. But when charges are at the rest. When charges are at the rest. ये एक्सप्रेशन कर लेते हैं हम, वैसे तो 12th क्लास में आता है फर्स्ट यूनिट में, बट बिल्कुल एनालॉगस है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग. We have a charge, point charge, this time point charge Q1, we have another charge Q2. They will exert force, but charges are at rest. अभी बताया था रेस्ट पर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जो फोर्स लगेगा जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यहाँ चार्ज रोल प्ले करेगा मास. डिस्टेंस इज r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या किया था वहां पर 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सही आ रहा है आपके दिमाग में. क्लबिंग द इक्वेशंस, वही फिजिक्स का रूल है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा. ये Q1 Q2 है, वहां पर क्या है, दिस कांस्टेंट अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट इक्वेशंस. हर इक्वेशन में लगाता है, वहां पर कैपिटल जी आया था, यहाँ पर के है कूलम्स कांस्टेंट. के इज व्हाट, और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ये प्ले करता है, इट इज मीडियम डिपेंडेंट. मीडियम आई सेड डिपेंडेंट, वाटर के लिए अलग होगा, वैक्यूम के लिए अलग होगा, किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग होगा. तो अब हमारे दिमाग में वो बात आ रही है, अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस को इतनी ही सेपरेशन पर किसी और मीडियम में रखूं, दिस फोर्स विल बी चेंज्ड. Q1 is same, Q2 is same, R1 is same, बट अगेन मीडियम जैसे ही आपने किसी दूसरे मीडियम में रखा, दिस K विल बी चेंज्ड. Because of change in this K, this value will be changed. तो यहाँ से कंक्लूड किया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम व्हाट डिपेंडेंट, व्हाट मीडियम डिपेंडेंट. यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स है ये एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स. मैंने स्ट्रॉन्गर कहा है, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्गेस्ट की हम टुमारो वी डिस्कस व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी आपको दिखाते हैं कैसे. आपको पता है अगर मैं इसको, इस मार्कर को अगर मैं रिलीज कर दूं तो ये इट मूव्स डाउनवर्ड. वाई अभी बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दिस मार्कर. अब नहीं जा रहा है नीचे. अब क्यों नहीं जा रहा? थिंक अबाउट इट. क्या अब अर्थ नहीं खींच रही है इसको? स्टिल अर्थ इज अट्रैक्टिंग, बट मैंने अपने हाथ से एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है. थर्ड यूनिट वी डिस्कस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. बट हुआ क्या है, जब भी मैंने इसको मार्कर को अपने हाथ पर रखा, तो जो ये इसके पार्टिकल्स होंगे और जो मेरे हाथ, जो हाथ के पार्टिकल्स हैं हाथ पर है, एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम एटम्स ना, उन चार पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्सर्ट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दिया. तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा बताइए? जीरो ना. इट मीन्स जितना पूरी अर्थ फोर्स लगा रही थी नीचे, उतना मैंने लगा दिया ऊपर. और मैंने कौन सा लगाया मेरे हाथ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ से कंक्लूड हुआ इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ प्रॉपर्टीज. अगेन बहुत आसान है, साथ साथ लर्न हो जाएगी. बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में रिपीट मत कर दीजिए. पेशेंस रखिए, पेशेंस, यू मस्ट हैव पेशेंस. आज के स्टूडेंट्स में पेशेंस बहुत कम है. दिस इज द रियलिटी है. देखते हैं थोड़ा सा आता है, स्किप कर दिया. नहीं, कंसिस्टेंसी, पेशेंस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ. हिंदी में एक अच्छी बात आती है, नियम और संयम दोनों ही आवश्यक है जीवन में सफल होने के लिए. एक नियम बना लीजिए और संयम मीन्स पेशेंस यू मस्ट हैव. प्रॉपर्टीज, लेट अस मूव. हाँ जी, वहां पर फर्स्ट क्या था? वीकेस्ट. यहाँ पर क्या आना चाहिए? स्ट्रॉन्गर. यस, स्ट्रॉन्गर.
second degree means comparison, then gravitational force. Second. उसी की तरह है, लाइक चार्जेस है तो दे विल रिपेल, अनलाइक है तो अट्रैक्ट, मींस एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या बता दें इसको? सेंट्रल फोर्स। क्या बता दें इसको? कंजर्वेटिव। पढ़ लीजिए, फोर्थ यूनिट में आएंगे, एक्सप्लेन थोड़ी। कंजर्वेटिव फोर्स, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आया था, ऑब्वियस इनवर्स कर दो। ऑब्वियस इनवर्स कर लो। हाँ जी हाँ, मीडियम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। मीडियम डिपेंडेंट। तो स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल, कंजर्वेटिव, ऑब्वियस इनवर्स कर लो, मीडियम डिपेंडेंट। और नेचर, हाँ जी क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। आज के इतना स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टू फंडामेंटल फोर्सेस रिमेनिंग एंड द कंजर्वेशन लॉस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस गिव्स द मोटिवेशन टू अस, योर सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड्स मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।